Assalamu alaikum everyone. Today I will deliver the next lecture. It's being a little gap because of the quiz and all. So we almost done. We actually have completed from the demand analysis, containing the basic description of demand and related all the details of the demand, including the elasticity concept and margin utility concepts and income effect, substitution effect. So uh, we have done it thoroughly, and now it's the time to go with the next topic, which is in fact the supply analysis. Let me have a review of with you. This is being the seventh week is going on. We already gone we already are done with 6 weeks, and we are done with chapter number 4. Further we have to, let me open the course outline. Yeah, it's right here. So we have gone 6 weeks have gone and we have conducted 2 quizzes. एक असाइनमेंट हो चुकी है, और इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई. दिस इज़ अ टॉपिक वी आर गोइंग टू डू सप्लाई and then production. So this chapter number 5 will include details of the supply and all related concepts of, that is, elasticity of supply. And then we'll move on to production theory. We'll touch upon the production theory a little bit, and then we also talk about the cost theory. So that would be a numerical as well. So uske baad, this is the next final concept which will be delivered in like 15 minutes, is price signals. And then after price signals, we actually are done with the microeconomics part. So practically we are left with 2 chapters, in fact, from the microeconomic side. So today I am moving on to the chapter number 7, which is from the supply description. So let's see what the chapter is look like. Here we go with the chapter. This is supply. What is supply? And इसका section 1, section 2 or section 3 है. Section 1 is about supply, section 2 is about production, and section 3 is about cost. So chapter 5 contains every detail of supply and producer theory. So let's start with supply first, and then I'll move on to the production theory, and then it will be the cost theory which will be covered, and then we'll do a numerical, and partially we'll discuss the market structure, and that will complete the discussion of the producer theory. So far we have done the consumer theory, which is the discussion of demand analysis और income effect and substitution effect and elasticity. अब हम आ रहे हैं producer theory के ऊपर, जो कि मैंने अभी discuss किया. So let's start with the supply. Okay, so let me open my notebook. Yeah, it's right here. Supply, chapter 5. which is supply. ओके, और इसके अंदर सेक्शन 1 जो है वो है सप्लाई पर, सेक्शन 2 जो है वो है प्रोडक्शन, और सेक्शन 3 जो है वो है कॉस्ट. ये 3 करने के बाद हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, and that all is the complete description of producer theory. Okay, it's just one chapter, and the next chapter is chapter 6 about price signals. Once we are done with that, that will end microeconomics, and then next will be the macroeconomics. मैक्रोस के बाद शुरू होगी. तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दिया कि हम किस तरीके से मूव करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई. व्हाट इज सप्लाई? तो हम क्या क्या डिटेल्स इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट मी राइट डाउन ऑन द साइड दैट व्हाट वी विल डिस्कस इन सप्लाई. That is what is concept of supply, what is law of supply. ठीक है जी. उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई स्केड्यूल. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
what is individual supply and market supply. Okay, and then we'll talk about changes in quantity supply and change in supply, two concepts. And then we'll talk about what are the factors behind change in supply. These factors are: A, cost of resources; B, productivity; C, technology; D, taxes and subsidies; E, expectation; and F, government regulations. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है एफ के बाद जी, दैट इज नंबर ऑफ सेलर्स. Okay, the next topic would have been elasticity of supply. ठीक है, और elasticity of supply जो है, price elasticity of supply डिस्कस होगी. could be greater, less than, and equals to 1. ये मैं डिस्कस करूँगी. And then I'll talk about determinants of elasticity of supply. Price elasticity इसके determinants क्या है? तो उसके determinants जो है वो main important जो है वो है time required for production process. और उसी की बेसिस पर I'll differentiate between elasticity of supply and production time. ठीक है जी, तो ये जो है हमारा चैप्टर्स को ये फिनिश हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई. व्हाट इज सप्लाई? तो अकॉर्डिंग जस्ट लाइक वी हैव डिफाइंड डिमांड, इसी तरीके से सप्लाई कॉन्सेप्ट है. if you remember, the demand is a concept related to consumer. तो supply is something which is related to producer, and it talks about producers nature in a way that what the quantities, what they want to supply, what are they able and able to supply, what they are able to supply. So if we talk about supply law of supply is basically is a link between quantities of supply and prices, and I hope that you understand that prices represents the gain to suppliers. Okay, increase in price imply some extent increase in profit. So what you are expecting, that what kind of supply you are having if more prices are there. If prices goes up, it imply increase in quantity supply, and if prices go down, then it imply decrease in quantity supply. So what is this relationship there? So we can say law of supply represents
positive relationship between prices and quantity supplies. और फिर यहाँ पर एक चीज़ important है, where other things remaining the same. अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट है, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. तो बिफोर वी गो विद दोज फैक्टर्स आई वुड लाइक टू गो विद द स्केड्यूल, और फिर कुछ डिटेल्स के बाद फिर आई गो विद द factors which can affect supply. So let's say I have price ka data which is 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. And quantity supplies ka data, as I say, there is a positive relationship between prices and quantity supply. So I am expecting that there is increase in quantity supply with increasing prices. So if suppose I start with 0, so this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10, this is 12. ठीक है. So it's just like if I make it a graph, so this is like I have quantities here and I have prices here. So this is 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. ये 35 आ गया. 30, 25, 20, 15, 10 and 5 and 0. And here we have 0, 2, 4, 6, 7, 6, 8, 10 and 12. So let's make the graph 5 and 0. So when the price is 5, quantity supply is 0. When the price is 10, quantity supply is when the price is 5, quantity supply is 0. So this is the point actually, when the price quantity supply is 0. This point would be when 0 price and 0 quantity supply. But when the price is 5, the quantity supply is 0 is this point. ये नहीं है, ठीक है. उसके बाद जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितना है, 2 है. जब प्राइस 15 है तो ये 4 है. जब प्राइस 20 है तो ये 6 है. बस जब प्राइस 25 है तो ये 8 है. 30 है तो ये 10 है, और जब 35 है तो ये है 12. तो बेसिकली मेरे पास जो ये स्केड्यूल आ रहा है ये है सप्लाई स्केड्यूल, एंड दिस शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाईज. अच्छा, अब ये जो है स्केड्यूल ये कैसे चेंज हो सकता है. सपोज कर ले कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बढ़ जाए, वो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाए. इफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाए, इफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या चीज़ होती है, द रिसोर्सेज आर दोज इनपुट्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अगर कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज कर जाए, इसका मतलब है नाउ द सप्लायर हैज़ टू बाय द इनपुट मटेरियल विच इज़ एक्सपेंसिव इन द मार्केट, सो ही वुड नॉट बी एबल टू बाय more material. So if he is not able to buy more materials, definitely he would not be able to supply more in the market. So what will happen, that the same prices the supplier would be able to supply less. तो कुछ ऐसे होगा, अगर सपोज मैं इसी को ही मॉडिफाई करूं, सो आई वुड राइट क्यू एस स्टार. ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लो कि हम इसको नहीं डिफाइन करते. पहले 10 प्राइस के ऊपर 2 सप्लाई हो रही थी, क्योंकि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो इतना एक्सपेंसिव था. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस. ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगी हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा हो गए, तो ये सारी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज का इंक्रीज है. और इस पर क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो सकती है, क्योंकि पीपल कैन नॉट, सप्लायर कांट अफोर्ड टू बाय इनपुट्स एट द हायर प्राइसेस. सो लेस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल रिजल्ट्स इन लेस सप्लाई इन मार्केट. सो क्या होगा कि पहले अगर वो 10 रुपए के ऊपर 2 यूनिट सेल कर रहा था, तो क्वाइट पॉसिबल दैट ही मे सेल लेस. 15 के ऊपर 4 कर रहा था 3, 5 की 6 की बजाय 5, 8 की बजाय 7, 10 की बजाय 9 और 12 की बजाय 11. तो अगर मैं इस स्केड्यूल को, जैसे मुझे इसको डिफरेंट नाम करने के लिए क्यू एस प्राइम में कह देती हूँ, इफ आई प्लॉट दैट स्केड्यूल ऑन द सेम ग्राफ, सो व्हाट यू कैन सी कि 5 पे पहले 5 वाला तो हम नहीं डिफाइन कर रहे, तो 10 के ऊपर 2 था, तो अब वो क्या कर रहा है, 1 कर रहा है. सो डेफिनेटली 1 वुड हैव बीन कुछ यहाँ पर इस प्राइस पर अब कम सप्लाई हो रही है, यानी ये 10 प्राइस पे पहले 2 सप्लाई पे ये पॉइंट था, तो 1 के ऊपर पीछे पॉइंट आएगा. 15 के ऊपर पहले 4 यूनिट सप्लाई हो रहे थे, अब उससे पीछे पॉइंट आएगा. इसी तरह से पहले 6 यूनिट जो सप्लाई हो रहे थे, अब उससे पीछे पॉइंट आएगा. सो ऑल द पॉइंट्स विल कम बैकवर्ड्स, एंड वी विल हैव एक्चुअली अ न्यू ग्राफ
which would look like a red line. So basically it shifts back. So क्या होगा जब भी सप्लाई जो है सप्लाई जब डिक्रीज होती है, आई एम नॉट सेइंग क्वांटिटी सप्लाई, आई एम सेइंग सप्लाई, तो ये शिफ्ट अप होता है, शिफ्ट अप ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है जी। और जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो शिफ्ट डाउन ऑफ सप्लाई कर्व होता है। इसी तरह से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो यही प्रोड्यूसर इन्हीं प्राइसेस के ऊपर ये वाला सप्लाई स्केड्यूल की बजाय एक और सप्लाई स्केड्यूल होगा जो कि एट एवरी प्राइस ही वुड बी एबल टू सप्लाई मोर। सो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो शिफ्ट आएगा। तो बेसिकली लेट्स से सप्लाई प्राइम एंड सप्लाई डबल प्राइम, ये है जनाब डिक्रीज इन सप्लाई और ये है इंक्रीज इन सप्लाई। So this is called increase and decrease in supply. This increase and decrease in supply can take place not only because of only cost of production, but there are actually many factors which can contribute into the change in supply. Look, I am saying change in supply, I am not saying change in quantity supply. So at this moment, if I ask you the question that what is change in quantity supply and what is a factor behind change in quantity supply, so what you will say? Change in quantity supply किस वजह से है? Due to प्राइस। ये देखो प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई, प्राइस फर्दर इंक्रीज हुई, क्वांटिटी सप्लाई फर्दर इंक्रीज हुई। सो वी अंडरस्टैंड इट वेल। एंड व्हेन एवर चेंज इन प्राइस टेक्स प्लेस, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो क्या होता है, यू मूव अलोंग द कर्व। सो चेंज इन प्राइस इंप्लाई मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व, ठीक है जी। लेकिन जो चेंज इन सप्लाई है वो किसकी वजह से होता है, वो फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जरा हम वापस जाते हैं। मैंने ऊपर लिखे हुए सारे फैक्टर्स, तो मैं उसी को यूज करती हूँ। ये देखें, ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, या हियर वी गो, ये सारे फैक्टर्स हैं। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, एज आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। प्रोडक्टिविटी क्या मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि नाउ विद द सेम रिसोर्सेज द फर्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। और ये किसकी वजह से होता है, ये कुछ इनोवेशंस की वजह से होता है या किसी भी रीजन से होता है। सो इफ देयर इज अ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज करेगी और वो राइटवर्ड शिफ्ट नीचे शिफ्ट कर जाएगा। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है, इसका मतलब है फ्रॉम द सेम इनपुट्स यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर। इसका मतलब है जितने भी वो रिसोर्सेज पहले आप मटेरियल यूज कर रहे थे ना, अब उसी मटेरियल से यू कैन एबल टू प्रोड्यूस, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन। दिस इज अगेन एन इंक्रीज इन सप्लाई एंड द शिफ्ट डाउन ऑफ द सप्लाई फंक्शन। टैक्सेस एंड सब्सिडी, टैक्सेस होती है जो गवर्नमेंट इंपोज करती है। सो अगर सप्लायर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और टैक्सेस इंक्रीज करने से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और आपकी सप्लाई डिक्रीज होती है। तो टैक्सेस इंक्रीज विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन सप्लाई एंड शिफ्ट अप ऑफ द सप्लाई फंक्शन। सब्सिडी टैक्सेस का ऑपोजिट है। सब्सिडी इज अ ग्रांट द प्रोड्यूसर गेट्स एंड इंक्रीज इन subsidy results in increase in supply, so increase in supply will shift the supply function downward. Expectations, ये expectation किस चीज की है, ये expectation है, expectation of prices, future prices, of prices in future। तो अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो वो क्या करेगा, वो करंट सप्लाई को कम कर देगा और वो स्टोर कर लेगा प्रोडक्ट्स को फॉर द फ्यूचर सेल्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइसेस कम होने वाली है, तो वो आज सेल ज्यादा कर देगा, दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट डाउन ऑफ द सप्लाई फंक्शन, एंड ऑपोजिट विल हैपन। गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है बाज़ सैंक्शंस लगा देती है कि एक प्रोडक्शन जो है वो मुख्तलिफ सैंक्शंस होती है कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन दैट, और देयर इज अ कोटा असाइन टू एवरी प्रोड्यूसर, और देयर आर डिफरेंट। तो रेगुलेशन हमेशा प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। नंबर ऑफ सेलर्स का मतलब ये है कि कोई अगर कमोडिटी बहुत प्रॉफिटेबल है तो उसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेलर्स के इंक्रीज होने से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, एंड दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन शिफ्ट ऑफ सप्लाई फंक्शन डाउनवर्ड्स। तो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब हम जाते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई।
इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो कि मैं करवाना चाह रही हूँ। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई वही है जो आपने अभी देखा है, ठीक है। और मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी सप्लायर्स। तो सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई जो है, सपोज करो एक सप्लायर है ये वाला, ये है क्वांटिटी सप्लाई और ये प्राइस, और ये उसका सप्लाई स्केड्यूल है। दूसरा सप्लायर है QS1 और प्राइसेस, और वो बंदा है जो इसकी ग्राफ ये। तो ये दो ही सप्लायर है मार्केट में, ये प्रोड्यूसर 1 है, प्रोड्यूसर 2 है। तो क्या हो रहा है कि ये देखो मैं मार्केट सप्लाई बनाने लगी हूँ। सो व्हाट आई एम हैविंग एट दिस प्राइस, यहाँ से थोड़ी सी सप्लाई आ रही है, बट दिस वन इज नॉट सप्लाइंग एट ऑल। तो क्या होगा, एट दिस प्राइस देयर इज अ लिटिल सप्लाई कमिंग इनटू टोटल। सो द मार्केट सप्लाई is equals to supply from the producer 1 plus supply from the producer 2. So this graph will be talking about market supply, and we will be adding the supply coming from both. So this is suppose price 1 at which this supplier is supplying nothing while this supplier is supplying a small amount. So the market will contain that small amount which is coming from the producer 2. Once I talk about this price, ठीक है, तो this supplier is supplying this much and this one is producing only that much. So the total supply would be the supply from the first producer and the second producer. तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, तो तकरीबन इतनी वैल्यू। इसी तरह से फर्दर मैं एक और लाइन पॉइंट में कर लेती हूँ, और ये देखो ये तीसरी प्राइस है, इसके ऊपर इस सप्लायर ने इतना सप्लाई किया और इसने इतना सप्लाई किया। टोटल प्रोडक्शन जो है वो कुछ यहाँ पर होगी, तो कुछ मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आएगा। सो प्रैक्टिकली व्हाट डू आई हैव अ वेरी फ्लैटर सप्लाई फंक्शन विच इज अ मार्केट सप्लाई फंक्शन। जो मार्केट सप्लाई फंक्शन है वो हमेशा फ्लैट होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव डन सो फार। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का, वो भी आपसे फेमिलियर हो उसके साथ। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यू नो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी वेल। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नाउ ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। और उसको अगर हम इलेबोरेट करेंगे डेल्टा QS ओवर डेल्टा P, और इट्स नथिंग बट द स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन इनटू P बाय QS, ठीक है जी। और ये वही सारा फार्मूला है, वही सारा मेथड है। आप इस वाले ग्राफ को इस वाले डाटा को यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर इसमें ये है पॉइंट इलास्टिसिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था, कोई नई बात नहीं है इसमें। और एक और होता है फार्मूला जिसके अंदर आप लिखते हो ये करके P1 प्लस P2 ओवर Q1 प्लस Q2, ये सप्लाईज है, और ये होती है आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है जी। तो जिन दो पॉइंट्स को आप ले रहे होते हो, इसके अंदर आप जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है उसका PQ डालते हो, और इस वाले के अंदर जो दोनों पॉइंट जिनके दरमियान चेंजेस आ रही होती है उन दोनों के प्राइसेस को ऐड करते हैं, क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, यू एंड अप इन आर्क इलास्टिसिटी। सो पॉइंट इलास्टिसिटी इज इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट, जैसे कि ये है Q और ये है P। तो अगर ये सप्लाई फंक्शन है, तो अगर पॉइंट इलास्टिसिटी की बात है तो इसका मतलब है इस पॉइंट की इलास्टिसिटी, लेट्स से पॉइंट A। और अगर आर्क इलास्टिसिटी की बात है तो हम कोई दो पॉइंट्स के दरमियान ही इलास्टिसिटी लेते हैं। तो बेसिकली क्योंकि हमने P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2 डाला हुआ है, तो वो इस पूरी लाइन, इस पूरे सेगमेंट की इलास्टिसिटी हो जाएगी। तो आर्क इलास्टिसिटी इज द इलास्टिसिटी ऑफ अ सेगमेंट एंड पॉइंट इलास्टिसिटी इज द इलास्टिसिटी ऑफ अ पॉइंट। फार्मूला सारे वही हैं, कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं है जिसको बताया जाए। अच्छा जी, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कभी डिफरेंट होती है, मतलब कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। किस चीज़ की वजह से ये चेंजेस आती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि दो तरह के ग्राफ हैं, ठीक है जी। एक ग्राफ जो है वो ये है फ्लैट सप्लाई, और यहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, यहाँ क्वांटिटीज़ है। और एक है ये स्टीप, इसकी है स्लोप कम लेस, और इसकी इलास्टिसिटी होगी हाई, ठीक है जी। इसकी है स्लोप हाई और इसकी इलास्टिसिटी होगी लो। ये रिलेशनशिप हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी। अच्छा, अब इलास्टिसिटी कम या ज्यादा कैसे होती है? व्हाट मेक्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू बी हाई और लेस? तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती क्या है। इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब हाउ
producer, how much producer, how much producer can respond. रिस्पॉन्स का क्या है कि वो चेंज कितनी कर सकता है क्वांटिटी सप्लाई टू द चेंजेस इन प्राइसेस. ठीक है, कितना रिस्पॉन्स कर सकता है. तो अगर सपोज करो प्राइस इंक्रीज हो गई, ठीक है, ऑफ कोर्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी. इट्स नॉट अबाउट दैट वेदर इट विल इंक्रीज और नॉट, इट्स अबाउट हाउ मच. क्वेश्चन इज हाउ मच. ठीक है, इफ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर, दैट मीन्स हाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इफ क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीज जो है वो है लेस, दैट इम्प्लाइज लो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है जी. तो अब ये व्हाट मेक्स इट, व्हाट डिटरमिन्स दैट वेदर द इलास्टिसिटी वुड बी हाई, or in other words what determines that whether the supplier would be able to respond to the changes in price drastically or limited response can come. It depends on time taken in production process. अगर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइसेस द प्रोड्यूसर वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड. लेकिन अगर यही प्रोडक्शन टाइम जो है वो कम है तो प्रोड्यूसर वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली विद द इंक्रीज इन प्राइसेस. तो अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा या कम कैसे हो सकता है, दैट इज़ अ रियल क्वेश्चन. प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसकी टाइमिंग्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ प्रोडक्शन पे. सपोज करो कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट विच इज़ गारमेंट्स, ठीक है, एंड देयर इज ईद का सीजन है, प्राइस जो है वो गारमेंट्स की इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ डिमांड सिचुएशन इन द मार्केट. तो क्या करेगा प्रोड्यूसर कि वो फौरन नए लेबर हायर करेगा और ओवर टाइम्स स्टार्ट करेगा और वो बाय नाइट ही वुड बी एबल टू इंक्रीज सप्लाई. तो क्या हुआ कि इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन वेरी ड्रास्टिक इंक्रीज इन सप्लाई. सो इसका मतलब है कि गारमेंट्स सप्लाई इज इलास्टिक. लेकिन अगर यही इंक्रीज इन प्राइस है, सपोज कर लो कि टमाटो, ठीक है ना, तो अब प्रोडक्शन टेक्स टाइम. लेट्स से एक जो प्रोडक्शन आती है उसकी एक टाइम पर आती है, उसके बाद नेक्स्ट टमाटर जो है वो 1 वीक का टाइम लेते हैं. तो इसका मतलब है 1 वीक तक ये वाली प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती. तो रिस्पांस इज नॉट एज फ्रीक्वेंट एज इन केस ऑफ गारमेंट्स. इसी तरह से अगर कोई और चीज़ है जिसको वीट कह लें, सपोज तो वीट के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए जिसके बाद वो नई क्रॉप आएगी. तो इसी तरीके से और बहुत सी प्रोडक्शन प्रोसेस है. तो अगर किसी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है तो वो लेस इलास्टिक होगी, और अगर किसी प्रोडक्शन के लिए कम टाइम रिक्वायर्ड है तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगी. तो हमने अभी तक वी एक्चुअली आर डन विद दिस सप्लाई कॉन्सेप्ट. लेट मी हैव अ रिव्यू फॉर द चैप्टर. इट्स द चैप्टर. तो दिस इज सप्लाई, दिस इज अ स्केड्यूल, दिस इज मार्केट सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई, और वो सारी चेंज इन सप्लाई की भी बात हो गई. एंड देन ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं. टैक्सेस, सब्सिडी, एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर ऑफ सेलर्स. उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गया. ये 3 तरह की इलास्टिसिटीज हो सकती हैं. और फिर डिटर्मिनेंट्स उसके क्या है वो भी डिस्कस हो गए कि उसके अंदर प्रोडक्शन टाइम इन्वॉल्व है. और वी आर एक्चुअली डन विद द सप्लाई कॉन्सेप्ट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी विल डू इज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. और वो मैं करने के लिए जो है नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसके अंदर कंटिन्यू नहीं करूंगी. थैंक यू.